خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سی پیک اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ آرمی چیف، DGISI، نیول اور ایئر چیفز کی شرکت۔ وزرائے اعلیٰ، گورنرز، چیف سیکرٹریز، وزرائے داخلہ، وزرائے دفاع اور متعلقہ اداروں کے حکام بھی اجلاس میں موجود۔ چینی باشندوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلوں پر غور۔ اجلاس غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی اور ملک میں امن و امان کی تازہ ترین صورتحال اور داخلی سلامتی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس میں غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی پلان کے SOPs پر مینوانہ عمل درآمد کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطہ رکھیں۔ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں۔ اور ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ معاشی ترقی اور سی پیک کے لیے سیکیورٹی اور استحکام ضروری ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا گھر درست کریں ورنہ سی پیک اور مستقبل کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے۔ کہا آرمی چیف، کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بلا کر انٹیلیجنس ناکامی کی وجوہات کا پتہ لگائیں۔ ہم خطرات کی زد میں ہیں۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ مزید کہا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملک کی معیشت بکھر گئی ہے۔ PTI حکومت کے دور میں 426 ارب روپے کی ریکوری ہوئی۔ موجودہ حکومت میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ان میں نواز شریف، حسین نواز، آصف زرداری اور شرجیل میمن شامل ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سالوں میں جو ریکوریز ہوئی تھیں 426.4 ارب روپے، 426 اور یہ جانا تھا 1100 ارب۔ یہ حکومت آئی ہے پرسن سپیسیفک، اور میں نے نام بھی یہاں پہ پڑھ کے سنا دیے تھے۔ آصف علی زرداری، آپ کے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آپ کے حسین نواز، حسن نواز، آپ کے شرجیل میمن، آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں، فریال تالپور، یہ جتنے نام ہیں ان کو پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس لا کے ان کو ڈرائی کلین کر کے سرف اور برائٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اور میوچول لیگل اسسٹنس ختم کر دی اور پروف ان ایڈمیسیبل کر دیا۔ ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے، فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج ہمارا دوست ملک چین آ کے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اور سی پیک کا پروجیکٹ وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ورنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا فیوچر انویسٹمنٹس یہاں پہ خطرے میں ہیں۔ امیڈیٹ کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اس پہ بلائی جائے اور اس انٹیلیجنس فیلئر کو ڈرل ڈاؤن کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل نے کہا اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے مایوسی ہوئی۔ انہوں نے ہٹلر کی طرح اپنے رہنما کو جیل بھجوا دیا۔ ماضی کے جھروکوں سے سبق سیکھیں۔ آج قرض کی بات کرنے والوں سے پوچھیں ملک کو قرض میں کس نے ڈبویا؟ پاکستان کا 76% قرضہ PTI کے دور میں بڑھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کس کے ذمہ ہے بتایا جائے۔ گائیں بھینسیں بیچ کر ایوان صدر میں مشاعرہ کروایا گیا۔ 4 سال میں آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ آپ کو مضبوط ملک ملا، آپ نے دعوے بڑے کیے لیکن ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ نوجوان نسل کا اعتماد ٹوٹا تو وہ کسی سیاستدان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ بعد یہ 180 قریب پاؤنڈ کے 180 ارب پاؤنڈ والا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے اس کا غبن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیس کس کے ذمہ ہے؟ یہ پیسے کس کے ذمہ ہے؟ کہاں سے آئے اور کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جناب ان کے زمانے میں نیب کی ریکوری بڑھ گئی۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں گئے سر؟ کون سے IMF کے قرضے واپس ہوئے؟ تو جو بھی آپ بات کریں تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں سے صبر حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ پورے نوجوان 70%، اگر 80% آپ کے ساتھ تھے تو ان 4 سالوں میں دیکھا آپ نے کتنی شدید تنقید آپ پہ بھی ہونے لگی۔ اس کا اعتماد جو آدھا ٹوٹا تھا اور آدھا پھر ٹوٹے گا تو پھر یہ نہ آپ پر یقین کرے گی، نہ نون پر، نہ مجھ پر۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ PTI ہے، یہ نون ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے۔ وہ دیکھے گی یہ سیاسی برادری ہے۔ اس پر یقین نہیں رکھنا۔
दूसरी जानिब वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सवात वाक़े पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, सवात में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, मुझे भी गोली का निशाना बनाया गया। दीन का नाम लेकर हम आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका ऐवान में तज़किरा होना चाहिए। इस पर एक्शन ना लिया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, जिस पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि आप वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर मामले पर एक्शन लें। काबीना का रुकन होते हुए भी आप ऐवान में मामला उठाएंगे, ये हुकूमत की बेबसी को जाहिर करता है। दीन के आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाक़या पेश आया, आपने देखा जड़ावाला में इसी किस्म का वाक़या हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाक़या हुआ, इचरे में इसी किस्म के वाक़े से हम बच निकले। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को, इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूँकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुँच चुका है कि जहाँ पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के ज़रिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोनते हैं। सिर्फ खुदा की ज़ात किसी को जला सकती है। आप देखिए कि हम यहाँ पर लोगों को जिंदा मार के उनकी लाशों को जलाकर किस किस्म का दुनिया के सामने पेश करते हैं। एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाक़यात के मुहर्रकात का जायजा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे कि हम किस तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें, सड़कों के ऊपर। शुक्रिया, थैंक यू। इसमें गुजारिश है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफीक के साथ, हु इज मिनिस्टर इंटीरियर, और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप सीएम केपीके से कोऑर्डिनेट करके इश्यूज को हाईलाइट करें। अगर कैबिनेट का हिस्सा होते हुए यहाँ ये रेज करेंगे तो थोड़ी बेबसी सी महसूस होगी, तो प्लीज़ इसको आप अपने कैबिनेट में उठाएं और वहाँ करें। कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझ गए कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और सवात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। कहा, दुनियावी और दीनी एतबार से सफाई का हक हर मुल्जिम को हासिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन जत्थों वालों की निशानदही करनी चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। वेलकम बैक। आपको बताएं, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा कि IMF के दबाव पर हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। सेनेटर अखवानजादा चिटान ने कहा, फाटा और पाटा में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल होता है। इन इलाकों में इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करें। 4 से 5 साल प्लान होना चाहिए। इनपुट पर टैक्स 6% के बजाय 3% कर दिया जाए। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला ने कहा कि टैक्स छूट का फ़ायदा फाटा को नहीं सिर्फ चंद लोगों को होता है। FBR हुकाम ने बताया कि दूध पर टैक्स बढ़ाने से 40 अरब जबकि स्टेशनरी पर टैक्स बढ़ाने से 7 अरब रुपए रेवेन्यू आएगा। खजाना कमेटी ने बच्चों के दूध पर टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्स ना लगाने की तजवीज़ दे दी। और बानी पीटे की कॉल पर रावलपिंडी शहर में एहतजाजी रैलियां निकालने का मामला। रैली निकालने पर थाना सदर बैरूनी पुलिस ने मुकामी रहनुमाओं समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में PP 11 से रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नजीबरी नामजद कर दिए गए। नामजद मुल्जिमान में अल्लादीन खाबर शहजाद, रहीम बख्श मेहताब, उस्मान टाइगर, राजा इश्तियाक और राजा हैदर मेहदी शामिल हैं। मतन मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर चौक को बंद करके आवाम को परेशानी में मुब्तला किया। मुल्जिमान ने कारी सरकार में मुदाखलत की और पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरबान भी हुए। मुल्जिमान ने तकारीर करके आवाम को इश्ताल दिलाने की कोशिश की। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने PTI के 4 रहनुमाओं के नजरबंदी अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 रोजा नजरबंदी अहकामात 3 MPO के तहत जारी किए गए हैं। शहरियार रियाज करने रिटायर्ड अजमल साबर राजा, चौधरी अमीर अफजल, तैमूर मसूद अकबर के नजरबंदी अहकामात जारी किए गए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अडयाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की नजरबंदी की सिफारिश महकमा पुलिस ने की थी। महकमा पुलिस की सिफारिश की तौसीक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने 20 जून की मीटिंग में की। DC रावलपिंडी और रावलपिंडी पुलिस का कमाल बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमा अजमल साबर की नजरबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा ईद से कबल बरतानिया रवाना हो गए थे। रावलपिंडी पुलिस ने अजमल साबर को नुक्से अम में खदशे के सबब करार दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पुलिस रिपोर्ट पर 3 MPO का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क रवाना हुए। कर्नल अजमल साबिर का नाम FIA ने PNIL लिस्ट से निकाला था। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ मलिक इमरान से। मलिक इमरान, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, कर्नल अजमल साबिर 14 तारीख को पाकिस्तान से बरतानिया रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो बरतानिया में मुकीम है, जबकि रावलपिंडी पुलिस और DC रावलपिंडी की तरफ से उन्हें पाकिस्तान में नक्शे अमन का सबब करार देकर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 3MPO के तहत उनके नज़रबंदी के 15 रोज के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि कर्नल अजमल साबिर 14 तारीख को पाकिस्तान से बरास्ता तुर्की बरतानिया रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक इमरान। उकाड़ा में PTA रहनुमा और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना A डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। गिरफ्तार होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी सलीम भी शामिल थे। चौधरी सलीम सादिक और 9 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट राना राशिद अली खान की अदालत में पेश किया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम दिए। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत में चल के जमा करवाने के बाद रिहा कर दिया गया। उधर सखर बैराज का गेट खराब होने का मामला, वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोर दोबारा सखर बैराज पहुंच गए। सेक्रेटरी आपाशी और चाइनीज टीम आपाशी इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने बताया कि सखर बैराज का 44 गेट निकाल कर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। सखर बैराज गेट बह जाने का मामला, PTA सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। पता चला कि सखर बैराज का गेट नंबर 47 तोड़कर दरिया में बह गया। कहा गया कि गेट नंबर 47 कमजोर है। सखर बैराज का दरवाजा टूटा नहीं, तोड़ा गया है। सखर बैराज का दरवाजा डूबा नहीं है, डुबोया गया है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिर्फ माल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। सिंध को डुबोने के लिए इस बार सखर बैराज का गेट तोड़ा गया है। ऐसा करने से सिंध की 80 लाख एकड़ जमीन गैराबाद हो जाएगी। ये दरवाजा 35 टन का है, पानी से कैसे टूट सकता है? इस वक्त अपस्ट्रीम में 1,60,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जबकि डाउन स्ट्रीम 1,02,000 पानी गुजर रहा है। 2010-11 में 11.5 लाख क्यूसेक पानी इसी सखर बैराज से गुजरा था। इस वक्त इन दरवाजों को कुछ नहीं हुआ था। गेट नंबर 47 बह चुका है, जिसे लगाने का इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की मद में अरबों को फंड आया था। सखर बैराज के लिए 47 अरब से चीनी कंपनी से दरवाजे मंगवाए गए थे। 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पिछले साल गेट नंबर 37 बनाया गया। IMF हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। IMF ने बजट मंजूरी में मुल्की सियासी इत्तफाक की तारीफ की। मुतादिद अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने को सराहा। इस इक़दाम को मौशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार दिया गया। सख्त मौशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुश आइन करार दिया। सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की। टैक्स छूट के खात्मे को महसूलाती कामयाबी करार दिया गया। बजट साजी से कबल पेश किए इक़दामात को सराहा। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।